D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं सिविल अस्पताल की IDSP लैब में। आपको हमने 2 दिन पहले भी बताया था कि यहां पर 5 जो लोग काम करते थे उनमें एक डॉक्टर हैं और भी 4 लोग हैं जिन्हें पॉजिटिव बता दिया गया था। ये पॉजिटिव जब ये हो गए तो इन्हें कितना शॉक लगा जब किसी को पता चलता है कि वो कोरोना ग्रस्त हो गया तो उस पर क्या बीती है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार गलती कहाँ हुई थी। शायद प्रशासन को इस बात का से कोई लेना देना नहीं है, कोई गलत रिपोर्टिंग हो रही है तो हो रही है। प्राइवेट लैब में कभी गलत रिपोर्टिंग होती वो ऐसे होता, वहाँ पर अगर पॉजिटिव पाया जाता बाद में नेगेटिव हो जाता तो बहुत ही बवाल मचता। हम यहाँ आपको ले जाएंगे अब यहाँ IDSP लैब के अंदर, जहाँ पर हमारे साथ ये डॉक्टर मौजूद हैं जिन्हें पॉजिटिव बता दिया गया था जबकि वो पॉजिटिव नहीं थे। हम आपको बताएंगे कि इनके ऊपर क्या बीतती है जब किसी को पता चलता है एकदम कि ये पॉजिटिव होते हैं। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡਾ नाम क्या है जी? मेरा नाम डॉक्टर गौतम देवगन है। मैं ਐਜ਼ ਅ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ IDSP ਲੈਬ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਨ ਟੈਸਟ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੈਟਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ RT-PCR। ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਫੀਵਰ ਹੈ, ਕਫ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣਾ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ 'ਚ ਏਜਡ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਘੁਮਾਏ, ਡਾਕਟਰ ਬੇਬੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ OPD ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਵਾਇਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਰੈਪਿਡ ਕਰਵਾਏ। ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰੈਪਿਡ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ ਸੇਮ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੈਪਿਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਲੂ ਕਾਰਨਰ ਖਲਵਾ ਕੇ? ਸਾਡੀ 2 ਵਜੇ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 2:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰੈਪਿਡ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ PCR ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਵਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਂਪਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਣੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ 5 ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੇ 5 ਨੇ ਅਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਏ, ਰੈਪਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਤੇ PCR ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਰਾਤ ਨੂੰ 1:30 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਆ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰ ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੀ ਰੱਖਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਈਕਰੋਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਸੈਂਪਲ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵਰਕਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਨਿਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਹਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਜਾਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਰੇਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 100% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ 5 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਸਰ ਨੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਪਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 17 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੈਂਪਲ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਬੈਟਰ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਖੁਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦਾ
ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੜਾ ਖੱਪ ਪਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੁਝ 2-4 ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੈਂਪਲ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਸੈਂਪਲ ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ KD ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ KD ਦਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਰਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ IDSP ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਬ ਕੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, तो सीरियल वाइज करके ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮੂਥ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਟਰੋਮਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ है। ਇਹ टेक्निकल मतलब मेंटल ट्रॉमा ज़्यादा हो जाता थोड़ा कई बार। देखिए हमारे साथ और भी डॉक्टर उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी तुम्हारा? ब्यूटी सिंह, एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं IDSP लैब में काम कर रही हूँ। तो डॉक्टर साहब जैसे आपको पता चला, कब से आप काम कर रही हैं? आप भी डॉक्टर हैं? हाँ जी, 1 साल हो गया मुझे यहाँ पे कोरोना फ्लू कॉलर में और कोरोना में काम करते हुए। तो जब आपको पता चला कि आप पॉजिटिव पाए, कोरोना हो गया आपको, तो क्या आपके ऊपर बीती हो, क्या व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल के लिए आ ही रही थी और मुझे पहले ही सिविल सर्जन ऑफिस से कॉल आ गई डॉक्टर राघव जोशी जी कि उन्होंने मुझसे ये कंफर्म करना था कि ये आपके ही टेस्ट है, नाम तो आपका है और बाकी जो स्टाफ है ये आपका है। तब मैंने उनको बताया, फिर मैंने उनसे रिपोर्ट पूछी कि क्या रिपोर्ट क्या आई है, हमने कल टेस्ट दिए हैं अपने। तब उन्होंने हमें बताया कि आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, आप में कोई सिम्टम्स वगैरह हैं या नहीं, वो तो हो गया, लेकिन जब आपको पता चल गया अभी आप पॉजिटिव हैं, तो अब क्या आपके ऊपर क्या होता? तो आपने वो समय जो है वो कैसे निकाला? उस टाइम पे मैं एकदम से पहले तो स्टिल हो गई, एकदम शॉकिंग थी ये तो, कि मैं अपनी फैमिली के बीच में बैठी हुई थी, तब मैं उनसे बिल्कुल सेपरेट हो गई। फिर सेपरेट होकर मैंने फिर से फ़ोन उनका रखा और मैंने अपने स्टाफ को इन्फॉर्म किया कि उनके घर में भी हैं और वो लोग ड्यूटी पे जाने के लिए सब लोग रेडी होंगे। तो सब ये नहीं लगा जैसे जब आपको पता चला कि आप पॉजिटिव आई हैं, जिन लोगों के आप अपने परिवार के साथ बैठी थी, बच्चे भी हैं आपके, बुजुर्ग माँ बाप भी होंगे, आप पेरेंट्स होंगे, तो उनको आपने कुछ कहा भाई आप भी अब अपना, आप एकदम से होता ही है आप पॉजिटिव? मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया क्योंकि मैं खुद ही शॉक्ड हो गई थी, तो मैंने कहा उनको मैं बताऊंगी तो वो लोग भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए थोड़ी देर मैंने अपने आप को थोड़ा रिलीव किया, फिर उसके बाद बताया मैंने। सारा मेंटल ट्रॉमा आपने खुद अपने ऊपर झेला? हाँ जी, अब तो फैमिली है, मेरी मदर खुद बीमार हैं, तो फिर मुझे तो थोड़ा बहुत लेना पड़ता है ना। मतलब आप डर गए थे? तो हाँ जी, बहुत ज़्यादा डर गए थे उस टाइम। तो भविष्य में ऐसी गलती ना हो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि जैसे वहाँ पे सब क्रॉस चेक होता है, हम भी यहाँ पे सैंपल जो हमारे यहाँ से जाते हैं हम लोग अच्छे से क्रॉस चेक करके भेजते हैं कि अच्छे से उस पर लेबलिंग पेशेंट की नाम, एज वगैरह सब सही है कि नहीं है। तो वहाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर वहाँ से जो रिपोर्ट्स निकल रही हैं तो वो लोग अच्छे से क्रॉस चेक करके भेजें। तो आपको क्या लगता है देयर वाज अ कंटेमिनेशन और ये किसी बंदे की गलती है? नहीं, हो सकता है ये तो मतलब टेक्निकल एरर है, बंदे की गलती तो नहीं है, बस ये है कि क्रॉस चेक होना चाहिए था एक बार, बाकी तो मशीन में तो कुछ भी हो सकता है फॉल्ट ना, ऐसा तो कुछ वो नहीं है। ये देखिए ये भी ट्रॉमा से निकले हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं घर से, ये देखिए यहाँ पर सैंपल करने। आप क्या नाम है जी आपका? मेरा मोनिका, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ यहाँ पे IDSP लैब में। तो मोनिका जी जब आपको पता चला पॉजिटिव आई हैं तो आपके ऊपर क्या बीती? हाँ जी, मैं भी बहुत शॉक्ड हो गई क्योंकि मेरी भी एक बेटी है छोटी सी 4.5 साल की, तो हम खुद ही बड़े शॉक्ड हो गए कि हमने घर भी जाना है तो हमने अपने आप को कैसे क्वारंटीन करना है। मतलब हमारे में कोई सिम्टम नहीं था, असिम्टोमेटिक थे हम बिल्कुल ठीक थे। तो हम सब ने पहले तो अपने आप को रेडी किया कि हम पहले टेस्ट करवाएं, अपने रैपिड टेस्ट करवाए हमने। वो तो सारी बात हो गई। तो आपके लिए वो टाइम, जो समय जब आपको पता चला पॉजिटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव रिपोर्ट आने तक आपके ऊपर कितना भारी रहा? वो तो देखो हम बहुत शौक थे क्योंकि हम सभी 5 जाने जो हमने टेस्ट करवाए और हम पॉजिटिव थे। बहुत शौक था कि हम असिम्टोमेटिक हैं। और ये भी डर लग गया होगा फिर रात को आप बच्ची के साथ सोई हैं तो
ये तो डर रहता है कि मेरी छोटी सी बेटी है और मेरे घर में और भी मेरी मदर इन लॉ है कि सबके कांटेक्ट में हम ना आए। जब हम घर भी गए तो हम अपने बेटे और हस्बैंड और मदर इन लॉ जो भी है हमारे घर में, हम सबसे अलग रहे, क्योंकि हमने किसी को बताया नहीं, सिर्फ हस्बैंड को बताया। पर ये है कि हमने सारा शौक अपने मेंटली अपने तक ही रखा जब तक हमारी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आई। क्या नाम है जी आपका? मानव सर। थोड़ा क्या काम है थे? सर मैं यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ और साथ में एलटी भी। तो आपको जब लगा, पता चला कि आप पॉजिटिव आ गए हैं, तो आपके ऊपर क्या बीती? सर एकदम से शॉक्ड ही हो जाए सारी रात, सर टेंशन ही आई जाए दिमाग में, यही बात ही घूमी जाए कि पॉजिटिव आ गई, कोई सिम्टम नहीं, कोई ये नहीं, सारी रात सर यही बात घूमती रही। फिर सुबह नेक्स्ट डे फिर टेस्ट कराया सर, वो फिर जब नेगेटिव आई फिर सर दिमाग में सही हुआ। तो जब ये कितने घंटे बाद आपको पता चला पॉजिटिव से नेगेटिव होने तक कितना समय लगा आपको? सर एक दिन के बाद, एक दिन 24 घंटे लगे आपको? हाँ जी। तो ये 24 घंटे कितने भारी थे आपके ऊपर? सर बहुत ज़्यादा भारी, बहुत ज़्यादा सर, बर्डन एकदम दिमाग में सर एक ही चीज़ घूमी जाए कि पॉजिटिव आ गए, कोई सिम्टम नहीं, तो यही सर। चलिए, ये देखिए इनके ऊपर भी भारी स्ट्रेस रहा था। ये आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि जी, आप भी उसी दिन पॉजिटिव आई थी, तो बाद में आपको पता चला, जब आपको पता चला पॉजिटिव आई तो फिर आपके ऊपर मतलब कैसा आपको लगा? सर यही था कि अभी घर से होके आए हैं, फैमिली में के बीच में बैठे हुए हैं और सडनली हमें पता चल रहा है कि हम पॉजिटिव हैं। सुबह देखो खाना बनाया है घर में, ऑब्वियसली अगर इतना टाइम हम पॉजिटिव थे, इतने दिनों से अपनी फैमिली के बीच में बैठे थे, तो कहीं ना कहीं मन में यही था ना कि शायद हो सकता है कि हमारे साथ हमारी फैमिली भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो मेंटल ट्रॉमा से गुजरी हैं आप? जी यार, मैं तो सारे सो ही नहीं पाई, क्योंकि बच्चे से फिर अलग रहना पड़ता है, अलग बेड पे सोए हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा होता है। बच्चा छोटा हो तो वैसे भी वो मदर के बिना तो वैसे भी नहीं रह पाता ना। कितना छोटा बच्चा है आपका? मेरा 3.5 ईयर्स का बेटा मेरा। और परिवार में और भी लोग बुजुर्ग होंगे? मदर इन लॉ डायबिटिक हैं ऑलरेडी, उनको हेल्थ इश्यूज भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आया होगा भी आपके कारण अब आपका परिवार भी संकट में आ गया। क्योंकि हम लास्ट ईयर भी सारी फैमिली एक बार पॉजिटिव हो चुके हैं, वो सिचुएशंस हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं कि किस तरह हमने अपने आप को 17 डेज़ घर में बंद रखा, तो ठीक है ना। बट आपको फिर लगा कि मैं मुझे फिर 17 दिन आपको घर में बंद रहना? शायद इतना पैनिक नहीं हुआ क्योंकि फैमिली के साथ, पूरा फैमिली हम साथ में थे। फैमिली साथ हो तो बंदा वैसे थोड़ा सा ना चीज़ों से हो जाता है, अपने आप को मतलब कवर कर लेता है। यहाँ मुझे था कि मैं अकेली हूँ तो मेरे को फिर से बंद होना पड़ेगा रूम में ना। आपको ये लगा कि जैसे आपके पास यहाँ कोरोना के रोज पेशेंट आपके पास सैकड़ों सैंपल आते हैं, तो आपको लगा था कि यहाँ से आप वायरस कैरी करके घर को ले गई हैं? यही फील आ रहा था, बट कहीं ना कहीं हम प्रिकॉशंस इतनी लेते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, मास्क पहन के रखते हैं, सारा दिन सैंपल्स के बीच में यहाँ बैठते हैं। यही था ना, कितनी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी हम पॉजिटिव अगर आ रहे हैं, पॉजिटिव आना गलत चीज़ नहीं है, बट हमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, हमारी फैमिली को भी कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो वो चीज़ थोड़ा इसलिए ज़्यादा डाउटफुली रहेगी हमें, इसलिए हमने दोबारा करवाया। फिर आपको क्या लगता है कि अब ये इस तरह की दोबारा गलती ना हो, जिस तरह आप लोगों को मेंटल ट्रॉमा सहना पड़ रहा है और लोगों को ना सहना पड़े, उसके लिए क्या होना चाहिए? सर यही है कि जहाँ भी कहीं गलती हुई है, चाहे वो टेक्निकल एरर रहा है या कुछ भी हुई है ना, तो वो तो हमें नहीं पता, वो जहाँ काम हो रहा है उनको ही पता होगा कि कहाँ हुआ है। बस थोड़ा सा उनको थोड़ा सा ध्यान से चीज़ें करें, क्योंकि हम मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, हम इन चीज़ों की अवेयरनेस है, हम अपने आप को कवर कर सकते हैं इन चीज़ों से। बाकी पब्लिक जो टेस्ट करवाने से भी डरते हैं, तो उनको कौन समझाएगा। तो आपके पास कभी ऐसा हुआ कि यहाँ पर कुछ लोग आके भी झगड़ते हों कि हम तो ठीक हैं, आपने हमारी रिपोर्ट नेगेटिव जो पॉजिटिव ही निकाल दिया, आपने जानबूझकर निकाली? होता है, बहुत बार ऐसा होता है। अभी कल ही एक उस दिन 4 तारीख की रिपोर्ट लेने मेरे पास एक पेशेंट आए, इवन आज भी ओल्ड एज के अंकल आए थे, तो वो ही सेड कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी बेटी भी ठीक है, मैंने उस दिन करवाया था जिससे 900 कुछ केस पॉजिटिव आए हैं। तो फिर मैंने उनको बोला कि अगर आप ठीक हो, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो डाउट क्लियर करने के लिए आप दोबारा टेस्ट करवा लीजिए एक बार। लोगों को में डर भी पैदा हो गया है। राइट, सही बात है। इसलिए उनको अपनी जिम्मेदारी और भी अच्छी तरह निभानी चाहिए। जी सर। तो आप कुछ और अपने सीनियर अधिकारी से इस बारे में बात की आपने भी, ये क्या उनके साथ कोऑर्डिनेट किया जाए कि ऐसी गलती दोबारा ना हो? सर हमने बात तो करी है, बट देखिए वो हमारे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उनको हमारे से ज़्यादा तजुर्बा है कि ऐसी सिचुएशंस में कैसे टैकल करना है। हम उनको एडवाइस तो नहीं दे सकते, बट उल्टा हम ही उनको जाके कर रहे हैं कि सर देखो ऐसा हुआ है ना। हमारे जो सिविल सर्जन सर हैं उनसे बात हुई है, वो कर रहे हैं इन चीज़ों को कि थोड़ा सा आगे से प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। ये देखिए, ये पांचों जो हैं, ये 2 डॉक्टर हैं और यहाँ पर काम करने वाला स्टाफ है IDSP लेबॉर्ट्री में, जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं। और ये तो देखिए इतने सक्षम थे, हमने पहले भी आपको बताया था, ये लोग सक्षम थे, इन्हें ये कोई सिम्टम नहीं था, इन्होंने अपने टेस्ट करवा लिए,
जहां इनको पता चला कि ये नेगेटिव हैं। अगर ये आम लोग होते तो शायद इस लेबॉर्ट्री को भी बंद करने की नौबत आ जाती, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं सैकड़ों सैंपल ये ढेर लगे हुए हैं यहाँ पर सैंपल के। और हमारा भी ये अपने चैनल के माध्यम से यही दरख्वास्त है कि जो उस दिन जिन लोगों के 932 केस एक ही दिन में जो पॉजिटिव आए थे, वो आना कुछ आसान बात नहीं है। उसके बाद ये जो पॉजिटिव केसों की संख्या लगातार घटती गई, उन सभी के दोबारा सैंपल टेस्ट होने चाहिए, ताकि जो लोग पॉजिटिव नहीं हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, उन्हें कम से कम मेंटल ट्रॉमा से ना गुजरना पड़े। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।